Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about Russian Revolution, means the different elements related with the Russian Revolution. Under this point, we discussed about the causes of the revolution, means the uh, condition of Russia in 1914, social and economic condition of Russia, and along with that, the different elements related with the revolution that took place in Feb 1917 Common Era. Is that clear? The revolution took place in Feb 1917 Common Era, which is known as the Revolution of Petrograd. Okay, यानी पेट्रोग्रेड का revolution 1917 Common Era में हुआ था, and there was different elements related with that. After this revolution, under the leadership of Kerensky, a provisional government was formed. And after the formation of this government, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन आफ्टर द जार निकोलस सेकेंड हुआ था, एक्चुअली 2 मार्च 1917 कॉमन एरा, जार निकोलस सेकेंड abdicated the throne on the advice of his military commander. इसके बाद जो गवर्नमेंट बनी वो करंस्की की लीडरशिप में थी, एंड इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ दिस political government, or we can say that this democratic government, gave an opportunity to Lenin to come back to Russia. Finally he returned back, came back to Russia. Okay, and there he put three major demands in front of the Kerensky government: end of the war, along with that all the banks should be nationalized, along with that the land should be redistributed. यानी उसने 3 मेजर डिमांड्स लोगों के सामने रखी कि वॉर, रशिया के लिए वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था 1914 से, उससे रशिया अलग हो, यानी रशिया के लिए उस वॉर को ख़त्म किया जाए, रशिया उस वॉर से अपने आप को अलग कर ले, सेपरेट कर ले. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, एंड एज द थर्ड पॉइंट, द लैंड विच वॉज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स. यानी जो लैंड लैंडलॉर्ड्स के हाथों में है, उनके पास में है, उनको पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. ये 3 डिमांड्स उसने रखी, और इस डिमांड को धीरे धीरे जो बोल्शेविक पार्टी के अदर लीडर्स ने उसने सपोर्ट किया, उन लीडर्स ने सपोर्ट किया, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस डिमांड वाज सपोर्टेड बाय द पीजेंट्स. ओके, तो कंट्री साइड में इस डिमांड को लेकर लेनिन के लिए सपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया. ओके, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट, Lenin was capable enough to start a new revolution in October 1917 Common Era. And here in this video we are going to discuss about the revolution of October 1917 Common Era. In some books this revolution is referred as the November Revolution also. यानी जहाँ पे फर्स्ट रेवोल्यूशन को फेब रेवोल्यूशन कहते हैं, वहाँ सेकंड को अक्टूबर रेवोल्यूशन रेफर करते हैं. जहाँ पे फर्स्ट रेवोल्यूशन को मार्च रेवोल्यूशन कहते हैं, एट दैट प्लेस यू विल फाइंड दिस रेवोल्यूशन एज द नवंबर रेवोल्यूशन. ओके, जहाँ पे फेब है वहाँ अक्टूबर है, और जहाँ मार्च है वहाँ पे ये नवंबर रेवोल्यूशन के नाम से रेफर होता है. सो द सेकंड रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन रशिया इन अक्टूबर 1917 कॉमन एरा अंडर द लीडरशिप ऑफ बोल्शेविक्स. Okay, Bolsheviks or the party established in 1918 Common Era. The Social Democratic Workers Party established in 1898 Common Era. Okay, and the leader of this party was Lenin. और ये revolution का प्लान भी Lenin का ही था. Is that clear? The revolution was planned by Lenin. Actually, because of the activities that were running at that time in Russia, Lenin thought that the Kerensky government would take a step to convert the system from democracy into a dictatorship.
यानी जो सिचुएशन, जो रिवॉल्ट, जो प्रोटेस्ट, अपराइजिंग करंस्की गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा था, उससे लेनिन को ऐसा फील हुआ कि जो करंस्की है वो अपनी गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर देगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट लेनिन convinced the leaders of the Bolshevik party for an uprising, for an revolution. Okay, and for this revolution, for this uprising, Lenin organized a meeting. Okay, on 16th October 1917 Common Era, and in this meeting he persuaded Manalia, Raji कर लिया, but persuaded the Bolsheviks, and the पेट्रोग्रेड काउंसिल. हमने डिस्कस किया था कि एक सोवियत काउंसिल या पेट्रोग्रेड काउंसिल बनी थी at the time of revolution of February 1917 Common Era. So on 16th October 1917 Common Era, Lenin organized a meeting. Okay, and in this meeting he persuaded the leaders of Bolshevik party and the Petrograd Soviet Council to organize an uprising, to organize a revolution, to organize a revolt against the Kerensky government. और इस गवर्नमेंट में यहाँ पे जो रेवोल्यूशन होने वाला था, इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए लेनिन ने आर्मी कमिटीज का फॉर्मेशन किया. ओके, द सोल्जर्स हु कुड सपोर्ट द सोशलिस्ट फॉर्म्ड द आर्मी कमेटी. यानी सिंपल सी बात है कि आर्मी में जो सोल्जर्स थे, जो मिलिट्री पर्सन्स थे, जो यहाँ पे सपोर्ट कर सकते थे लेनिन को इस रेवोल्यूशन में, फ्रॉम द साइड ऑफ आर्मी, दे फॉर्म्ड एन आर्मी कमेटी और मिलिट्री कमेटी. उन सब ने मिलकर एक मिलिट्री कमेटी बना दी. ठीक है, तो यहाँ पे एक मिलिट्री कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 16 अक्टूबर 1917 कॉमन एरा को. एंड इन दिस मीटिंग द लीडर्स ऑफ Bolshevik party, Petrograd Council, and along with that the military committee decided to organize an uprising against the Kerensky government. और जब करंस्की को ऐसा फील हुआ कि अब सिचुएशन उसके हाथ से निकलने वाली है, तो उसने भी इसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया. यहाँ इस मीटिंग में 16 अक्टूबर 1917 को डे ऑफ द मीटिंग, यानी किस डेट को मीटिंग होगी, दैट वाज कॉन्फिडेंशियल. एंड फाइनली द अपराइजिंग टुक प्लेस ऑन 24th October 1917 कॉमन एरा. ओके, यानी फाइनली रेवोल्यूशन शुरू हो गया ऑन 24th October 1917 कॉमन एरा. फाइनली द रेवोल्यूशन स्टार्टेड, फाइनली द अपराइजिंग स्टार्टेड. ओके, and as Kerensky noticed that the situation was out of control, he called the troops. उसने आर्मी बुला ली, पुलिस और कैवलरी को बुलाया गया to get rid from the revolutionaries, from the protesters. Okay, and finally the police captured 2 newspaper buildings, of Bolsheviks. ओके, तो बोल्शेविक का मतलब यहाँ पे जो सोशल वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बोल्शेविक है, और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो सोशलिस्ट के नाम से रेफर होती है. ओके, सो हियर द रेवोल्यूशन वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ बोल्शेविक्स. सो हियर द आर्मी जो सपोर्ट में थी टू द गवर्नमेंट, मीन्स द आर्मी, द सोल्जर्स विच वर लॉयल टू द गवर्नमेंट, Kerensky government, they captured 2 newspaper buildings related with the Bolsheviks. Okay, along with that the pro government army, यानी जो बची हुई पुलिस फोर्स थी या फिर जो बची हुई लॉयल पुलिस फोर्स थी, they tried to recapture the government buildings, and they, along with that, they also tried to
सिक्योर द विंटर पैलेस, यानी करेंस्की के पैलेस को या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस को सिक्योर करने का काम यहाँ पे जो बची हुई प्रो गवर्नमेंट आर्मी थी उसने किया था, मतलब जो बची हुई आर्मी थी उसने किया। तो एक आर्मी मतलब आर्मी जो ट्रुप्स थे उन्होंने टू न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स रिलेटेड विद दी Bolsheviks were captured, and along with that they also tried to recapture, tried to secure the government buildings and government offices. Is that clear? तो ये सारा पॉइंट आई थिंक अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कैसे इन्होंने ये सारे एफर्ट्स किए थे। ओके चलिए इसके बाद आगे क्या होता है। ओके तो यहाँ इसके बाद अब टाइम है बोल्शेविक्स का, यानी लेनिन का और लेनिन के सपोर्टर्स का। ओके तो यहाँ इस एक्शन के रिटर्न में लेनिन जो है उसने भी अपनी जो मिलिट्री कमेटी है उस मिलिट्री कमेटी को बोल्शेविक्स के सपोर्ट में आने के लिए कहा। एंड फाइनली द मिलिट्री कमेटी ordered the soldiers who were in support of the Bolsheviks, they ordered to capture the government buildings and along with that arrest the ministers. Okay, तो यहाँ पे जो मिलिट्री कमेटी फेवर में थी किसके, यानी एक मिलिट्री कमेटी जो है वो बनाई गई थी लेनिन के द्वारा, और इसमें वो सोल्जर्स थे जो बोल्शेविक के सपोर्ट में थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन the military committee or the soldiers which were there in the support of Bolsheviks, they arrested the ministers and along with that they captured or occupied the government buildings. Okay, this revolution continued till December. Until December, most of the cities were captured by the Bolsheviks. यानी शुरुआत कैपिटल रीजन से होती है, उसके बाद धीरे धीरे सारे शहरों को ऑक्यूपाई कर लिया गया था, और सबसे वायलेंट जो स्ट्रगल था वो मॉस्को में हुआ था। ओके, द मोस्ट वायलेंट स्ट्रगल टुक प्लेस इन मॉस्को। इज दैट क्लियर? तो ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन था। ओके, Bolshevik revolution which took place in October 1917 common era, 24th October. Okay, this revolution took place on 24th October 1917 common era. हुआ क्या कि जैसे ही अपराइजिंग बढ़ता दिखा तो करेंस्की ने मिलिट्री को बुलाया, ट्रूप्स को बुलाया, और इन ट्रूप्स ने बोल्शेविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को कैप्चर किया, and along with that they also tried to recapture the government buildings. उन्होंने विंटर पैलेस को सिक्योर करने की भी कोशिश की, और इसकी रिटर्न इसको रिटेलिएट करने के लिए जो आर्मी कमेटी थी, मिलिट्री कमेटी थी, उसने इस स्ट्रगल को रिटेलिएट किया, एंड इन दिस वे दे अरेस्टेड द मिनिस्टर्स एंड दे कैप्चर्ड ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मतलब पोस्टल ऑफिस और जो टेलीफोन बूथ से उन सबको कैप्चर कर लिया गया, उन सबको इनके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। फाइनली करेंस्की वहाँ से छोड़ करके भाग गया, और यहाँ का जो सिस्टम है वो किसके हाथ में आ गया? लेनिन के हाथ में। पेट्रोगेट was under the control of Lenin. Okay, after that Moscow was also occupied, and in this way the revolution spread in other cities also, and finally till the end of December most of the cities of Russia were under the control of Bolsheviks. तो यहाँ ये revolution हुआ जिसको हमने second revolution कहा है। First one is the Petrograd revolution and second one is the Bolshevik revolution under the leadership of Lenin. अब जो next point है that is changes after the revolution of October 1918 common era. Okay, so changes after October 1918 common era. We can say that changes after the revolution of 1917 common era. Okay, so finally the administration was there in the hands of लेनिन। ओके, और यहाँ पे अब उन तीन डिमांड्स को याद करो। द डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ एप्रिल थीसिस प्रेजेंटेड बाय लेनिन।
ओके सबसे पहले उन तीनों चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया एज दी socialist government, or we can say that as the Bolshevik government was completely against the individual property, or we can say that it was against privatism, निजीकरण के खिलाफ थे. So in this way all the lands were captured and handed over to, or we can say that the farmers were allowed to seize the lands from moneylanders, okay, from monarchs. वैसे चलो सबसे पहले डिमांड से शुरू करते हैं. सबसे पहले डिमांड क्या थी? रशिया वॉर से अलग होगा, तो वॉर शुड बी एंडेड. सो यहाँ पे वॉर ख़त्म हो गया रशिया के लिए, यानी इस गवर्नमेंट ने रशिया के लिए इस वॉर को ख़त्म कर दिया जर्मनी के साथ में एक संधि करके. ठीक है, तो लैंड were snatched or seized by the peasants. मतलब the Bolshevik government was against privatism, so finally the peasants were allowed, were supported by the government to seize the land from the moneylanders. Okay, यानी जो भी moneylanders थे या जो भी एलिट सेक्शन से रिलेटेड लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास में बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उन सब से ज़मीन छीन ली गई एंड दिस लैंड was handed over to the farmers, to the peasants. Okay, along with that all the banks were nationalized. Okay, all the banks were nationalized. सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. मतलब now the ownership and management of these bank was there in the hands of government. Okay, now the government will be responsible for the ownership and management of the banks of Russia. Okay, तो यहाँ पे प्राइवेटिज्म को ख़त्म कर दिया गया और जो भी बैंक थे उन सब का राष्ट्रीयकरण, उनको नेशनलाइज कर दिया गया. मतलब उनकी ऑनरशिप और उनके मैनेजमेंट को अब गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुए थे आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1917, अक्टूबर 1917, उसमें सबसे फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे कि बैंक्स और जो इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया. मतलब अब उनकी ऑनरशिप और उनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में था. अलॉन्ग विद दैट लैंड्स वर सीज्ड बाय द फार्मर्स. ओके, यानी जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं उन सब से उनकी ज़मीन ले ली गई और वो ज़मीनें अब किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी एज इट वाज डिमांडेड बाय लेनिन इन अप्रैल थीसिस. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट था, द एंशिएंट टाइटल्स. ओके, द एंशिएंट टाइटल्स ऑफ एलिट सेक्शन are now removed. Okay, means the current Bolshevik government didn't allow the moneylanders, the landlords or the members related with the conservative section to use the ancient titles. यानी उनके जो पहले के जो टाइटल्स थे, जो उनको मिले हुए थे, जो उपाधियाँ उनको मिली हुई थी, वो सारी उपाधियाँ, वो सारे टाइटल्स अब न्यूलीफाइड कर दिए गए थे. उन सारे टाइटल्स को, उन सारी उपाधियों को खत्म कर दिया गया था. इज दैट क्लियर? Along with that, बोल्शेविक पार्टी, जैसा कि लेनिन ने डिमांड की थी या लेनिन ने सजेशन दिया था कि बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी नाम दे दिया जाए. हियर आफ्टर द रेवोल्यूशन इन 1918 कॉमन एरा, द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, तो जैसा कि पहले लेनिन ने कहा था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी होगा, सो हियर दे रीनेम्ड इट एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, एंड आफ्टर दैट elections for assembly, constituent assembly. Okay, elections for constituent assembly held in Russia in January 1918 common era. Okay, तो पहले बोल्शेविक
पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, एंड आफ्टर दैट इलेक्शंस हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान के निर्माण के लिए इलेक्शंस हुए, संविधान बनाने के लिए चुनाव हुए. ओके, सो इलेक्शंस हेल्ड in January 1918 common era. Okay, but in this election the leaders of Bolshevik party remained unsuccessful. Okay, यानी इसमें बोल्शेविक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली. Elections held for Constituent Assembly in January 1918, but in this election the Bolshevik party remained unsuccessful in getting majority, यानी यहाँ इनको majority नहीं मिली. तो जब इनको majority नहीं मिली तो लेनिन ने डिसाइड किया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. बोल्शेविक पार्टी इज बेटर देन एनी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टम था, जो ऑर्गेनाइजेशन था बोल्शेविक पार्टी का, वो ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम करेगा, मतलब उसी के लीडर्स ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम करेंगे. सो लेनिन थॉट दैट द रूल, द सिस्टम ऑफ बोल्शेविक पार्टी was better than any other constitution. So finally he dismissed the constituent assembly, यानी जिस constituent assembly के elections हुए थे उसको dismiss कर दिया गया था. Finally the constituent assembly was dismissed by Lenin. Okay, इसके अलावा रशिया में धीरे धीरे बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया. मतलब लेनिन ने अपने अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाले जो अदर पार्टी के लीडर्स थे उनको धीरे धीरे साइड में कर दिया. एंड इन दिस वे नाउ देयर वाज ओनली वन पार्टी एंड दैट वाज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. यानी इसके बाद यहाँ इस असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद रशिया में बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको ख़त्म कर दिया गया. एंड नाउ देयर वाज ओनली वन पार्टी एंड दैट वाज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी बची थी एंड दैट वाज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. इसके अलावा एक स्पाई ग्रुप बनाया गया या एजेंसी बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. मतलब द सोल्जर्स वर अपॉइंटेड एज स्पाइस, जासूस के रूप में सोल्जर्स को अपॉइंट किया गया. मतलब रशिया में एक जासूस एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. ओके, एंड द मेजर वर्क ऑफ these soldiers were related with checking the activities of the leaders of the other party, or we can say that the person who opposed the activities of communist party. यानी ये स्पाइंग एजेंसीज जो थी वो जो भी लोग कम्युनिस्ट पार्टी को अपोज करते थे या फिर उसकी पॉलिसीज़ को अपोज करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ को अपोज करते थे, ये उन एक्टिविटीज़ को चेक करते थे, उनके ऊपर नज़र रखते थे. ठीक है. So in this way, after the revolution of October 1917 Common Era, the administrative system of Russia was completely changed. Banks were nationalized, land were distributed to the farmers. Along with that, a new constituent assembly was formed, but the Communist Party didn't get proper majority there, so it was finally dissolved by Lenin. Lenin declared Russian Communist Party as the one and only party to contest the election in Russia. And spying agency was formed, and the soldiers appointed in this spying agency were generally responsible to check the activities of the oppositions or the leaders who opposed the activities of Lenin. इसके अलावा रशिया में जो थिंकर्स थे, ओके, यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऑल्सो रैलीड इन सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. यानी उनको जो फ्रीडम मिला था, कम्युनिस्ट पार्टी जो एक मेजर पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी, उसके सपोर्ट में बहुत से राइटर्स और थिंकर्स भी आ गए थे. बट मैनी राइटर्स एंड थिंकर्स स्टार्टेड टू अपोज इट एज द सेंसरशिप वर कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट. मीन्स एज द सेंसरशिप वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इट वॉज अपोज्ड. ये उनको अपोज भी करने लगे थे, धीरे धीरे उनको अपोज भी किया जाने लगा था. इज दैट क्लियर? सो आई थिंक अब सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर
हो गए होंगे, यानी कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स थे रशियन रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन दिसंबर 1917 कॉमन एरा। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द सिविल वॉर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या था? सो एज द पावर सीज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी लेनिन ने डिसाइड किया 16 अक्टूबर को कि बोल्शेविक्स और पेट्रोग्राड काउंसिल के जो लीडर्स उनको मिलकर के पावर को सीज करना चाहिए सोशलिस्ट के फेवर में, कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में। ठीक है, तो इस पावर को सीज कर लिया गया। अब पावर सोशलिस्ट के हाथों में थी और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे साइड में हो गई, और जो कंजर्वेटिव्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके हाथों से उनकी लैंड चली गई, वो लैंड पीजेंट्स को दे दी गई। तो अब धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अलावा बाकी के जो अदर जो लोग हैं, जो जैसे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है और जो करेंस की गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब जो प्रोविजन गवर्नमेंट से रिलेटेड लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं और जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो सब मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं अगेंस्ट दी कम्युनिस्ट पार्टी और अगेंस्ट दी लेनिन गवर्नमेंट। ओके, और यहाँ इनके बीच में जो स्ट्रगल होता है दैट इज रेफर्ड एज दी सिविल वॉर, टुक प्लेस इन 1918 and 1919। 1918 and 1919 सिविल वॉर टुक प्लेस इन रशिया। ओके, तो हुआ क्या? द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड, यानी बोल्शेविक्स ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट द रशियन आर्मी स्टार्टेड टू ब्रेक, रशियन आर्मी टूटने लग गई। कैसे? एज द सोल्जर्स रिलेटेड विद द रशियन आर्मी वर मोस्टली पीजेंट्स, यानी सिंपल सी बात है कि बोल्शेविक पार्टी को फेवर करने वाले कौन थे? पीजेंट्स थे। एज द बोल्शेविक पार्टी डिमांडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड फॉर द पीजेंट्स, और जैसे ही पार्टी गवर्नमेंट में आती है, गवर्नमेंट बनाती है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है, द पार्टी डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड अमंग द peasants, and because of that the army started to break as the soldiers of the Russian army wanted to go back to home to get the land, यानी वो सब फार्मर्स थे, किसान थे, तो वो वापस जब उनको लैंड मिली तो वो वहाँ चले गए खेती करने के लिए, यानी उनको वापस ज़मीन मिली तो वो खेती करने के लिए तैयार हो गए। तो धीरे धीरे आर्मी कमज़ोर हो गई, सोल्जर्स की संख्या कम हो गई, और इसकी वजह से जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जो सोशलिस्ट थे, जो लिबरलिस्ट थे, एंड अलॉन्ग विद दैट द कंजर्वेटिव्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट यूनाइटेड। ओके, दे गॉट यूनाइटेड एंड टू इंक्रीज देयर पावर दे वेंट इन साउथ रशिया। ओके, कैपिटल से काफ़ी दूर साउथ रशिया में चले गए। ओके, दे रीच टू साउथ रशिया टू इंक्रीज देयर पावर, टू accumulate their power. Okay, and in this way in 1918 and 1919 most of the ancient Russian empire was captured by the non Bolsheviks, यानी यहाँ पे जो नॉन बोल्शेविक्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, लिबरलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, दे ऑल गॉट यूनाइटेड against the Bolsheviks, against the Communist Party, and after being united they went in South Russia, और वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज किया और रशिया के बहुत बड़े पार्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। As the conservatives lost their land because of the rules of Communist Party, they started to behave arrogantly against the farmers. फार्मर्स ने उनकी लैंड को स्नेस्ट किया था, तो उन्होंने फार्मर्स के अगेंस्ट एरोगेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया, यानी फार्मर्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, अपनी लैंड को रिकैप्चर करते गए और फार्मर्स के साथ में टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एंड ऑल दीज लीडर्स रिलेटेड विद द नॉन बोल्शेविक ग्रुप वर सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन, अमेरिका, France, all who were against the spread of socialism in France, in Russia, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, उन सब ने इन नॉन बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया 1918 और 1919 में, क्योंकि ये सोशलिज्म के अगेंस्ट एक जंग शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये सिविल वॉर जो शुरू हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट सिविल वॉर द
Bolsheviks and the non-Bolshevik group confronted each other, and this thing caused destruction. Famine became common. लेकिन इसका एक फ़ायदा कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ, और वो ये था that the non-Bolsheviks lost their support in the countryside, in the different regions. क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पीजेंट्स के लिए लड़ रही है, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जबकि जो नॉन बोल्शेविक्स हैं, नॉन कम्युनिस्ट हैं, वो सारे मिलकर के कम्युनिस्ट पार्टी के उस राइट को ख़त्म करना चाहते हैं। यानी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ था, जो प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करने की जो बात हो रही थी, वो सबको एलिमिनेट करना चाहते। तो इन दिस वे दे ऑल लूज देयर सपोर्ट, एंड फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी वाज द ओनली पार्टी हु हैव अ मास सपोर्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने फाइनली 1920 तक इन सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम के लिए, फाइनली दी कम्युनिस्ट पार्टी ओवरकम ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंटेड बाय दी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज। ओके, और रशिया में एक कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर लेनिन की गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट होता है, एंड हियर द कम्युनिस्ट पार्टी was means at different places, at different states, at different regions of Russia, the Communist Party was supported, the Bolshevik Party was supported by non-nationalist and the Jihadist। Jihadist जो हमने पढ़ा था कि वो मुस्लिम लीडर्स जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, इस्लाम में रिफॉर्म्स या सुधार चाहते थे, उन मुस्लिम्स ने धीरे धीरे उस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ से इस रेवोल्यूशन को फाइनली ख़त्म कर दिया जाता है, एंड इन दिस वे USSR, यूनाइटेड सोवियत स्टेट रशिया वाज फॉर्म्ड। ओके, और इसका फॉर्मेशन कंप्लीट होता है 1922 कॉमन एरा में। सो एज वी डिस्कस दैट द बोल्शेविक्स वर सपोर्टेड बाय नो नेशनलिस्ट एंड जेडिस्ट, बट इट वॉज नॉट एट ऑल प्लेसेस। यानी कुछ ऐसे प्लेसेस भी थे जो अपने आप बोल्शेविक्स में या कम्युनिस्ट स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए थे, एंड एट दैट प्लेसेस एट्रोसिटीज़ वर परफॉर्म्ड विद दी नेशनलिस्ट। वहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे उनके साथ में एट्रोसिटीज़ परफॉर्म की गई थी, और जो नॉन रशियंस थे, मतलब जो आउटसाइडर्स थे, उनके साथ में भी अच्छा बिहेव नहीं किया गया था। तो यहाँ पे यूनाइटेड सोवियत स्टेट रशिया में means with the formation of USSR in 1922 some special rights were given to these sections। okay, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई थी, यानी इससे पहले जो एट्रोसिटीज़ उनके साथ में परफॉर्म हुई थी नॉन रशियंस के साथ में, या फिर जो जो नेशनलिस्ट थे या नॉन बोल्शेविक्स थे उनके साथ में, उनकी वजह से उनको बहुत सफ़र भी करना पड़ा था। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे दीज वर दी different things related with the revolution of Russia, or the revolution that took place in October 1917 common era under the leadership of Lenin, and a new government named the Bolshevik government was formed in Russia, जिसको बाद में आगे चलकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का नाम भी दिया गया था under the leadership of Lenin। So guys, this is the end of the day. About the remaining things of this chapter we'll discuss in the next one, so stay tuned for the next. Stay at your home, be safe, thank you very much, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat।